सब सच को मैं क्लास करूँ We're rolling? Yes. Awesome. How many years? We messaged, so I came 3 years ago. और मैंने वेब सीरीज शूट की थी. Yes. That's when we were supposed to meet. Were we? Yes, we were Yes. supposed to meet. हाँ. But now we finally meet 3 years later. 3 साल बाद. Yes. And this is our third time meeting in this trip, but let's just call this the official meet. Yes. But how are you, Mona? I am good. मैं इधर देखूं उधर देखूं You किधर. can, oh, you're talking to me. Okay. हाँ. I am good alhamdulillah सब set है. वो कहते हैं ना एक सेकंड मुझे एक चीज़ आ रही है दिमाग में. सब सही है दूध दही है. That's the first time I'm hearing this. सब सही है दूध दही है. Well, say it. And like, how are you actually within yourself? I am content. You never know I can lie. They'll never know. But yes, alhamdulillah सब सही चल रहा है. It's on a slow pace, but मतलब slow भी अच्छा लगता है मुझे. Like it's when it's जब हर चीज़ बहुत जल्दी हो रही होती है ना मुझे it's too exhausting. So it's better to take things very consistently. एक अप आ जाते एक हाई आ जाता है मेरा मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हूँ and then I hit a low that stays forever. So now I'm trying to be more consistent with my routine, my work, with studies, everything. हर जगह में जैसे even this is an example मैं जब भी अपलोड कर रही होती हूँ कोई वीडियो मुझे एक कंसिस्टेंसी का भूत चढ़ जाता है फ़ौरन से एंड दैट्स अ हाई व्हिच जस्ट टेक्स मी कि मैंने 4 वीडियोस एक साथ अपलोड कर दी एंड देन आई लूज़ ऑल माई एनर्जी एंड मैं लो पे चली जाती हूँ देन आई अपलोड नथिंग फॉर लाइक 4 months स्ट्रेट तो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड खुद एक सेल्फ रिफ्लेक्शन हुई एक दिन मेरी a lot of people made me realize my friends made me realize that you need to control your highs and lows highs को तुम अगर एकदम ऊपर चली जाओगी ना तो यू विल गेट एग्जॉस्टेड इंस्टेंटली क्या कंसिस्टेंटली ऊपर जाओगी तो वो एक तुम्हारी एनर्जी बचती रहेगी यू विल नॉट कंज्यूम इट इंस्टेंटली तो उस वे में आई लाइक इट टू बी कंसिस्टेंट नाउ तो आई एम गुड हाउ आर यू I'm doing it, but we're here to talk about you. I am doing good, alhamdulillah. Things are fine. Things are doing good. Working on this interview series, obviously. Short film पे काम चल रहा है. शॉर्ट फिल्म Yes, short film. I Give- need to send you the script. I want to get it reviewed by you. I श्योर want as many women's perspective as I can. श्योर So that like You were working with Kaval Baji. I was working with Kamal Ahmed. Yes. Yes. Right. Is it related to that? No, it's not. अच्छा related मैंने to that. कहा वो वुमेन्स क्या आपने बोला ना कि लड़कियों हाँ. का इनपुट चाहिए तो मुझे उधर गया मेरा दिमाग पर नहीं, I get that. there was How? a project with her. Right. The project is done. जुलाई में खत्म हो गया था. ओह हो गया था हाँ, we're done with it. वो release भी हो गया project. It's called. अच्छा सही है I saw that You yes saw yes, it. yes. So that was it. But you said कि you need to control your highs and you need to control your lows. Do you Yeah. think they're controllable? Like if from now what you've experienced, like you've experienced your highs, you've experienced your lows, and you've experienced consistency. Do you think ये controllable है या नहीं है? I am still in the phase of figuring that out. मुझे खुद नहीं पता कि ये कंट्रोलेबल है कि नहीं बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड टू रियलाइज इट लाइक अ मंथ अगो क्योंकि जो मेरा रूटीन होता था ना वो हमेशा यही होता था कि या तो मैं बिल्कुल सारी एनर्जी एक ही जगह लगा दूँ या तो मैं बस पड़ी रहूँ Right. So it's been a month since I realized it and that's why I've been trying to be consistent on YouTube as well, including my life also. Routine थोड़ा change हुआ है since I've joined university. वरना मैं घर पे gap year मैंने लिया था तो मैं पढ़ी रहती थी. There wasn't nothing in my life besides work. All I used to do was work. वो भी YouTube से related work नहीं होता था वो ज़्यादा Instagram से related होता था लेकिन still मैंने जितनी एनर्जी अगर गैप ईयर में लगाई है इट्स ऑन सेल्फ रिफ्लेक्टिंग एंड वर्क उसके अलावा मैं कुछ करती नहीं थी मैं बुक्स पढ़ना शुरू की वगैरह वगैरह उससे सेल्फ रिफ्लेक्टिंग हो गई थी बट आई नेवर रियलाइज्ड माई हाइज एंड लोज वाला मसला इन दैट गैप ईयर आई रियलाइज्ड इट आफ्टर आई जॉइन यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी बिकॉज नाउ आई हैव अ रूटीन सेट. एक रूटीन आ जाते हैं ना तो आप फील करने लगते हो अच्छा मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही हूँ. क्यों हो रही हूँ? मैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी काम कर रही हूँ जो मैं लाइक एक्सपैंड कर सकती हूँ. काइंड ऑफ आई कैन एक्सपैंड माई रूटीन. लाइक अगर मेरे पास 2 वीडियो ऑलरेडी शॉर्ट हैं मैं उनको दोनों एक दिन नहीं डालूँ. पहले मैं ऐसी थी. मैं अगर 2 वीडियोस होती थी एक दिन एक डालती दूसरे दिन फ़ौरन से डालती. एंड शायद अभी भी मैं ऐसी हूँ लेकिन आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट. अगर ऑलरेडी फिल्म पड़ी नहीं है एडिट करो रख लो अपने पास स्केड्यूल इट फॉर लेटर. दैट्स जस्ट हाउ आई एम लाइक ट्राइंग टू पुट देम मतलब कंसिस्टेंट होने की कोशिश करी हूँ. एंड आई थिंक इट्स कंट्रोलेबल एज इफ येट बिकॉज आई एम ट्राइंग सो हार्ड. खैर Do you think that's a smarter way to go? yes अभी फ़िलहाल it looks smarter to me because मैं उस फेज़ में रह चुकी हूँ जहाँ पे मेरे हाइज़ आते थे और फिर जो लोज़ आते थे ना. हाइज़ आर ऑलवेज रियली स्मॉल. हाइज़ आर लाइक ओके a week of uploads, a week of doing work, a week of doing everything, meeting everyone in the same week. ये मेरे हाइज़ होते थे. और फिर जब लोज़ आते थे ना वो लोज़ कभी ख़त्म ही नहीं होते थे. दे यूज्ड टू टेक अ लाइफ टाइम टू एंड. कि मैं फिर उस पॉइंट पे आऊँ जहाँ पे मुझे वापस से एक हाई चाहिए होता था. तो वो कंसिस्टेंसी बिल्कुल लूज़ ही कर दी थी मैंने. दैट्स व्हाई आई रियलाइज ऑल्सो कि ज़रूरी है कि हर चीज़ एक ही साथ नहीं कर लूँ मैं. I've always been that person जो हर चीज़ एक साथ करना चाहती है. जैसे I want to meet the person the same day, I want to work the same day, I want to talk to other people the same day, I want to do घर के काम the same day, अपने काम the same day, ताकि मैं बस I get rid of the things. लेकिन I realized it कि नहीं ये आराम से ना दूसरे वक्त में भी हो सकता है. It's fine to do that. तो yeah कर सकते हैं control. Right. Very important question that comes from that is, so like I used to have the same thing and I still do, and indirectly that would affect my mental health. So how do you think that affects your mental health? Like how does high affect your mental health और फिर high के बाद जब low पे आता है वो how does that feel? If we particularly talk about just last year, it was very bad. मतलब मैं ना बहुत denial phase में चली गई थी. Okay, I've talked about this before, but not really in depth. I think मुज़म्मिल भाई के podcast में मैंने थोड़ा सा इसको touch किया था, but let's just talk about it. तो क्या कहते हैं when it क्वारंटीन जब आया बिल्कुल लॉकडाउन लग गया था. घर से आप निकल ही नहीं सकते. आई ऑलवेज बिन द पर्सन हु वाज एक्सट्रीमली आउटगोइंग. पूरा दिन मैं बाहर होती थी. घर पे इट फील्स वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड आई लाइक माई ओन जोन फॉर श्योर. मुझे अपना जोन पसंद है लेकिन आई वुड प्रेफर बीइंग विद पीपल आउटसाइड बस. तो जब वो वाला पूरा सीन हुआ आई ऑल्सो लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड लास्ट ईयर. तो वो एक अजीब सा टर्मोइल था. वाज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस. बिल्कुल ना लाइक इट्स लॉस यू ग्रीव. एंड ग्रीविंग के भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो मुझे नहीं पता था. बिल्कुल भी नहीं आइडिया ही नहीं था. लाइक आई यूज्ड टू ब्लेम माई सेल्फ, आई यूज्ड टू ब्लेम अदर्स एंड एक पूरा एक अजीब सा सिनेरियो हो जाता है ना उस पॉइंट पे. सो यू डोंट रियली नो व्हाट यू आर ग्रीविंग, यू आर जस्ट फीलिंग थिंग्स. फिर उसके बाद जब क्वारंटीन आया आई वॉज सो यूज टू टॉकिंग टू पीपल गोइंग आउट के बिल्कुल घर में बंद रह के ना मैंने खुद को बंद ही कर लिया. बंद ऐसे कि मैं घर की लाइट नहीं कमरे की लाइट नहीं जलाती थी. पर्दे बंद रहते थे. एंड आई वॉज ऑलवेज इन डिनायल कि नहीं मुझे डिप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है. लाइक आई एम फाइन. और कॉन्स्टेंट एक डिनाइल फेज रहता था until like this year भी I was still in denial कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा. Even though I lost 20 kgs in a month. Right. And I did nothing. मैंने like ना कोई डाइट की ना कोई मैंने एक्सरसाइज की. It just was I stopped eating. Like कुछ खाती ही नहीं थी मैं. एंड ऑब्वियसली एवरीवन वाज रियली कंसर्न फॉर मी. मैं अपनी स्ट्रेंथ जो होती है ना मैं 2 सेकंड चलूँ मेरी सांस फूल जाए. सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही. द डे आई रियलाइज दैट आई हैव कम्प्लीटली लॉस्ट ऑल माई फिजिकल स्ट्रेंथ वाज मेरी दोस्त की बर्थडे थी एंड वी वेंट साइकिलिंग.
प्लान बना और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि यस फाइनली लॉकडाउन था बट साइकिलिंग कर रहे थे ना, वो वाला सीन हो रहा था। तो आई वाज लाइक चलो चलते हैं साइकिलिंग पे ना, फाइनली आई कैन गेट टू गेट आउट ऑफ दिस हाउस यू नो फाइनली। अब हम गए साइकिलिंग पे, मैंने बस एक स्ट्रीट क्रॉस की है, आई कुड नॉट फील माई लेग्स, सांस मेरी पता नहीं किस दुनिया से बाहर चली गई थी। आई फेल्ट लाइक आई विल एक्चुअली पास आउट, जबकि अच्छा सा नाश्ता करके गई थी मैं उस दिन ना कि यू नो आई विल फील एनर्जाइज्ड, एंड बिल्कुल भी नहीं हुई मुझसे साइकिलिंग। सो आई रिमेंबर आई आस्क्ड माई फ्रेंड कि गाड़ी वापस लाओ, साइकिल हम गाड़ी में, बिकॉज वी रेंटेड दो साइकिल्स। मैंने कहा गाड़ी में साइकिल डालेंगे, मुझे तुम ड्राइव करके लेके जाओ, लाइक आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट गो बैक। एंड दैट्स द डे आई रियलाइज कि मतलब एक्चुअली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट स्टिल मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी मुझे, अभी बस मुझे फिजिकली लग रही थी कि पता नहीं कैसे वेट कम हो गया। एंड देन कम्स द अप्रिसिएशन फॉर इट विद द पब्लिक कि तुम तो पहले इतनी मोटी थी, अब तुम प्यारी हो गई, तुम पतली हो गई हो। सो आई लाइक्ड दैट, इवन दो आई वॉज वेरी अनहेल्दी, आई वॉज गेटिंग द वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल, द पब्लिक। और I was very young when I joined the public वाली चीज़, like YouTube में मैं I was 15. I've always felt a public की validation ज़रूरी, मुझे हमेशा से लगता था कि पब्लिक की वैलिडेशन ज़रूरी है, कमेंट्स ज़रूरी हैं, बिकॉज दैट्स फीडबैक। बट व्हेन इट केम टू माय बॉडी इट वाज वेरी पॉजिटिव उनके तरफ से, बट दे डिडंट नो हाउ आई लॉस्ट दैट वेट। तो आई डोंट इवन ब्लेम देम फॉर इट, आई डोंट ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, लेकिन इट्स जस्ट आई लाइक दैट वैलिडेशन। जब वो वाला पॉइंट आया, मैं कहा यार मैं पतली हो गई हुई है सब, in my mind I was like this is working because मैं पतली हो रही हूँ। I didn't still think कि ये depression हो सकता है, anxiety हो सकती है, कुछ हो सकता है, because even though I was aware of it I was in denial। तो then my friends were like one day कि भाई clearly you have a problem, ये एक proper problem है, तुम चल नहीं पाती हो, तुम गिर रही होती हो इधर उधर, खुद का ख्याल रखो। And one day they took me to kickboxing. Right, I remember that time. Yes, so my friends picked me up every single day from my house and took me to classes, and I started kickboxing. Changed my life. उधर से I realized कि okay there is a problem. I have ये lows ख़त्म ही नहीं हो रहा है मेरा। एक होता है ना कि बीच में हाई आ जाता है, मुझे हाई मिल ही नहीं रहा कहीं से, मुझे लाइक वो होते हैं ना कि मतलब कुछ को कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आ जाए, वो आ ही नहीं रही थी। किक बॉक्सिंग गेव मी दैट मोटिवेशन टू बी बेटर। और उस वक्त तक ये मैं मेंटली बात ही नहीं कर रही, अभी मेंटली आई वाज स्टिल इन दैट रियली बैड फेज। अभी बस फिजिकली आई वाज लाइक लेट्स जस्ट यूज दिस टू गेन ऑल माई स्ट्रेंथ बैक। किक बॉक्सिंग इज़ अ वेरी लाइक इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ एंड कोर, तो कोर स्ट्रेंथ मेरी डेवलप हुई। एंड आई वाज लाइक ओके फाइनली मैं आई डिड दैट फॉर आई थिंक 3 months and 4 months actually, yeah, around that time. And when I felt like I've gotten my strength back, I left it. like अब आ गया बस सही है। और बीच में आई थिंक काम भी आ गया था, आई थिंक आई वेंट टू पेशावर फॉर फुड फेस्ट वगैरह, तो उससे क्लासेस मिस हुई, तो देन वो मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई और मेरे दोस्तों की क्लासेस शुरू हो गई स्कूल्स की, तो दे ऑल्सो जस्ट काइंड ऑफ लेफ्ट इट। तो मोटिवेशन जो थी दोस्तों की भी कि इसको लेके जाना है, वो भी ख़त्म हो गई थी। बट आई फेल्ट गुड विद माई सेल्फ, विद माई यू नो स्ट्रेंथ जो मैंने लूज़ की थी वो वापस आ गई थी। अब आई कुड रन अ माइल एंड बी ओके यू नो। तो उस टाइम पीरियड में अम्मा ने बहुत ख्याल रखा, ऑब्वियसली वो मुझे देखती थी एंड शी यूज्ड टू फीड मी लाइक हर चीज़ कुछ भी मिल जाए मुझे खिला देती थी। तो आई गेन्ड मसल, आई गेन्ड लाइक, फिर मैं हेल्दी लगने लगी, बट स्टिल मेंटली आई वॉज इन अ वेरी वेरी बैड प्लेस। और मैं ऐसी मैं शेयर नहीं कर पाती, किसी से भी शेयर नहीं कर पाती, वेदर इट बी माई बेस्ट फ्रेंड्स और पेरेंट्स और ब्रदर और एनी वन, कज़न और कोई भी, मैं मुझसे शेयर नहीं होता, आई कीप इट टू माई सेल्फ। बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं शेयर कर पाती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक नो वन वुड रिलेट। लाइक मुझे होता है कि मैं इनसे बात करूँगी आगे से मुझे यही सुनने को मिलेगा, इट्स गोना बी ओके, मुझे वो सुनना ही नहीं था। तो आई kept things to myself and
फिर I got the Positivity Planner by Hamna Raza. उसमें इतनी सेल्फ रिफ्लेक्शन है लाइक ऐसे क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं, वीकली रिफ्लेक्शंस होती हैं, बट इट मेक्स यू व्हेन यू राइट डाउन अबाउट योर डे, इवन दो आई यूज्ड टू डू दैट, आई स्टिल डू दैट, लेकिन जब रिफ्लेक्ट करते हैं ना आप, यू रियलाइज सो मच अबाउट योरसेल्फ कि ये मसला है एंड दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड. तो अब एक प्रोसेस था ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. मैंने अब ठान ली थी कि नीड टू गेट बेटर मेंटली. इधर भी मैं डिनाइल में ही थी. आई नेवर थॉट दैट आई वाज इन डिप्रेशन, but then I took therapy and then I got diagnosed. तो मैंने कहा oh shit, ये तो असल में है कुछ सीन. Once you acknowledge the fact that you are not mentally okay, then only you can go towards bettering yourself. अगर डिनाइल में ही रहोगे हमेशा तो कभी बेटरमेंट नहीं हो सकती. यू कैन नॉट वर्क थ्रू दैट पॉइंट इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है, आप उसकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते. यू विल नेवर पुट इन इंसुलिन शॉट्स. सो दैट्स द पार्ट वेयर यू नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ यू आर डूइंग मेंटली. एंड आई अप्रिशिएट पीपल टू टेक थेरेपी. Because I've been very like मैं बहुत छुपाती थी कि मैं थेरेपी लेती हूँ, because even though I was so aware that people are so encouraging, even around me people were very encouraging, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी. And now I've never told people. I think the first time I actually talked about taking therapy was in Kazi Bhai का podcast, and that was like a month ago. So I've been taking therapy since forever. और मैंने इतने टाइम बाद, और वो भी काजी भाई ने थोड़ा ना मुझे वो कर दिया था कि बताओ, मतलब उस कॉन्वर्जेशन में मैंने कहा चलो बता देती हूँ. सो when you let it out, it's good, and people should make it a taboo kind of है, and it shouldn't be one. And I was one of those people who were making it a taboo, and अब नहीं हूँ मैं. सही, I talk about it openly, and it's a good thing to do. You are just curing yourself mentally. That's अगर आपको कोई बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो और सही करवाते हो. This is exactly the same thing. I don't know what's the taboo is about. कि आप पागल हैं, आप पागल नहीं हैं. You are normal, and depression is okay. Like होता है. I think every person on this planet Earth has been through a depressive state. पहले मुझे ना मैं बहुत डिप्लोमेटिक हूँ. आई एम अ पीपल्स प्लीज़र. मुझे सबके साथ अच्छा बनना है, मुझे गुड बुक्स में रहना है सबके. दिस इज़ माई पर्सनैलिटी एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, बट समटाइम्स इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि कभी कभी अगर कोई मेरे साथ गलत भी कर रहा होता है ना, मैं चुप रहती हूँ कि आई नीड टू बी गुड टू दैम, कि कारमा इसको खुद ही मिल जाएगा. दैट्स ट्रू दो, कारमा खुद ही मिल जाता है. मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ देती हूँ कि आपको पता है, आपका काम है भाई. मैं अच्छी थी उनके साथ, अब आप बुरे हो उनके साथ. So that just happens. That's how the universe works. At least हमेशा. I'm really into manifesting. Have you tried manifesting? I haven't tried manifesting. The law of attraction, basically. Law of attraction is like, just keep thinking about that thing and think about it as if you have it. जैसे for example, I loved YouTube. और एक पॉइंट पे मैंने उसको ऐसा समझा कि आई एम लाइक द बेस्ट यूट्यूबर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. और मैं सोचती गई एंड एट वन पॉइंट आई अचीव्ड अ लॉट ऑफ माई गोल्स इन यूट्यूब. एंड another example would be, I was a huge इरफान जुनेजो fan. एंड और पूरा वक्त मैं सोचती रहती थी इरफान जुनेजो मुझे नोटिस करेंगे, वो करते हैं मुझे नोटिस, वो मुझे देखेंगे. ये it used to be in my mind that इरफान जुनेजो already knows me, even though he didn't. लेकिन मेरे दिमाग में ये होता था, and eventually he did. Another example, young standards. I have been listening to them since 2012. सही है? Same. Long time. I remember 2012 जब तेरा डी का एरिया, गुलशन का एरिया it was बर्गर कराची वाला टाइम, मेरा मजनू वाला टाइम, द रिवर्ब नेशन पे जब उनके गाने आते थे. तो ये वाला सीन था. एंड आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज लाइक 10 years old जब मैं उनके गाने सुनती थी. बट आई स्टक विद देम बिकॉज इट वाज समथिंग वेरी न्यू एंड इतना नया सा जॉनरा था.
that even now I manifested so much बड़े होके भी कि I need to work with youngsters. I need to work with youngsters, and I did work with them in Hattu Bacho. So that I just attract things to me by constantly daydreaming. हर कुछ भी मुझे करना होता है ना, मुझे कुछ चाहिए होता है, materialistic, not materialistic. I just keep thinking about it all day long. सोते हुए भी वही. This is how Mr. Beast also works, by the way. अगर आपने उनकी podcast सुने होंगे, एक कॉलिन और समीर के साथ, कॉलिन एंड समीर के साथ उनका एक podcast था. That's what he talked about. That his way of doing YouTube is just constantly being obsessed with it. That's all you think about. And I think that एक और example मैं दे देती हूँ, हमजा मीम. He's studying medicine. It's कोई भी बच्चा I don't think can balance out YouTube the way he's so consistent. 2 uploads करता है हफ्ते में, maximum 2 uploads हफ्ते में. That's a lot. With studying, even though he has a team, but still, film तो वो खुद करता है ना. So you need to be dedicated and obsessed to get to that point. That's my analogy for it. Law of attraction always works though. I agree with that. Let's move to your childhood wale area. How was your childhood? How would you describe your childhood? Okay, it was it's a blur. It's a blur. Literally, it's foggy. मुझे ना अपना childhood बहुत याद नहीं है. मुझे I have such bad memory. मुझे I think childhood is just very normal, very typical, extremely typical. जैसे होता है. Pink colors for women, blue colors for guys. नहीं. Okay. I am the बच्चा of my family. ठीक है. Makes sense. Yeah, there's never been discrimination. I'm the most dominant in my family. मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई is the लड़की of the family. लेकिन my amma has always been very dominant. She's worked with a lot of men in her career, so she had to be very dominant and with authority वाला figure. So I've taken that from her. So अभी भी ना I have more male friends than female friends, and I'm very dominating towards them. वो मेरी सुनेंगे, मैं उनकी नहीं सुनूंगी. So that's a problem. लेकिन it's not that typical. जैसे उस सेंस में typical नहीं था मेरा childhood, जहाँ पे मुझे पिंक कलर पहनाया जा रहा है और फ्रॉक्स पहनाई जा रही हैं और लड़की बनाया जा रहा है. It was typical कि it was a family, I don't know how to describe it, लेकिन yeah. That's okay. I mean, you gave a good description of it. How's your school? So now moving from childhood to your school. So I was in Beacon House. And throughout nursery से मैं pre-nursery से मैं Beacon House में थी. I was a very shy child. इतनी shy थी मैं, मुझे because I was the first born. घर में कोई उस वक्त तक मेरा भाई नहीं आया था. So I've never really had interaction with kids or people. घर में ही अकेले होती थी with अम्मा and अब्बा. So there wasn't really interaction. जब मैं स्कूल गई, it was अम्मा मुझे कहती थी तुम इतना रोती थी, you just wanted to come back all the time. मैं ये नहीं होता फर्स्ट डे पेरेंट्स बाहर बैठे होते हैं, मैं बार बार चक्कर लगा रही होती थी रोते हुए. तो I was very shy, didn't talk to anyone in my class, and I was obsessed with Barney. Barney जो TV show है, वो पर्पल कलर का डायनासोर. So I was obsessed with him. That's all I used to watch. Pre-nursery की third day. There was a third day of my pre-nursery. He just started school. Library period में हमें Barney दिखा दिया. मैं इतनी खुशी हर रोज़ पर स्कूल जाती थी कि मैं Barney देखूँगी. But the next day library period नहीं था. No. तो वो हमेशा Barney नहीं मिलता था. But I was मैं Barney की वजह से सेट हो गई थी, वो रोना ख़त्म हो गया था मेरा. That's what I've been told. लेकिन मैं सेट होने के बावजूद बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी. So there was my teacher, pre-nursery में ही टीचर थी, नाम मैं उनका भूल गई हूँ.
सी दिस इज अ ब्लर, ओके. अम्मा को ज़रूर याद होगा, लेकिन अम्मा आप कमेंट कर दीगा नीचे. शी वॉचेस एवरीथिंग. बट लेकिन मेरी टीचर होती थी, उन्होंने इतना ट्राई किया मुझे इंटरेक्ट करवाने का. क्लास में कोई भी अगर काम होता था ना, लाइक स्पीकिंग का कुछ भी, वो मुझे खड़ा करवाती थी. दैट रियली बूस्टेड इट. अम्मा कहती हैं कि पोटेंशियल तुम्हारा जो इंक्रीज़ हुआ ना, वो उनसे ही हुआ है. जिस तरीके से उन्होंने काउंसलिंग की तुम्हारी, इन द सेंस ऑफ लाइक काम में स्कूल के एंड इंटरेक्टिंग, शी वॉज द वन हु रियली brought it to life, मतलब the talkativeness of mine. खैर फिर भी I was still very shy. एक ग्रुप ज़रूर बन गया था मेरा, लेकिन very shy. Nursery, KG, grade 1, grade 2, very shy girls, बहुत shy. Just one group of friends and that's it. उस ग्रुप में ही बस उस ग्रुप में ही बात करती थी, इधर उधर नहीं बात करती थी. Grade 3 में I got a really nice teacher, really pushed me. 4 में I was kind of mellowing down with people. लेकिन grade 5 में got a really nice teacher as well. She asked me कि मोमिना मैं तुम्हें select कर रही हूँ debate के लिए, debate team के लिए. And I have never done like stage पे जाके publicly talking. I've never done that. At this point पे मैं grade 5 में आ चुकी हूँ. लेकिन उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया ऐसी हवाओं में. एंड सबसे पहले शी आस्क्ड मी टू राइट माय डिबेट डाउन. शी गेव मी अ टॉपिक और फॉर अगेंस्ट जो भी होता है डिबेट में, इतना याद नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे एक पब्लिक स्पीकिंग वाले प्लेटफॉर्म पे डाल दिया. I still remember like shivering on the stage or slurring my words, और लेकिन no one in the audience booed or said something weird. No one bullied. Even my like the people, like the kids with me जो मेरे साथ competition में थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला. So around that I've been really lucky that people are very supportive. Like कभी भी ना मेरा मजाक नहीं हो रहा उस चीज़ में. Everyone was really supportive. Even though मैं उस obviously नहीं जीती, मैं आधे words तो slur कर रही थी उधर. But still they gave me a certificate for trying. और मिस जो मेरी थी वो आई, उन्होंने कहा ये बस फर्स्ट स्टेप है और आप आगे और कर सकती हो. एंड दे सॉ द पोटेंशियल मे बी, लेकिन वेरी इनकरेजिंग. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टू फील रियली एक्सट्रोवर्टेड कि मैं तो बात कर सकती हूँ लोगों से, और मैं बड़ों से भी बात कर सकती हूँ. और माई स्कूल वॉज रियली स्मॉल एज वेल, तो एवरीवन न्यू एवरीवन. ऑल द पेरेंट्स न्यू एवरीवन्स पेरेंट्स. तो पेरेंट्स लाइक मेरी दोस्तों की अम्मियाँ आके मुझे कह रही हैं बहुत अच्छा था तुम्हारा. सो द सपोर्ट वाज देयर सिंस चाइल्डहुड. फिर grade 6 में मेरा कैंपस चेंज हुआ. आई गॉट इनटू दिस ह्यूज कैंपस, और उधर थोड़ी बुलिंग थी उधर, क्योंकि A levels तक के बच्चे थे. तो दे यूज्ड टू पिक ऑन माई बैग, और मेरा बैग से किताबें निकाल के फेंक दी. बट आई थिंक इट रियली डिडंट बॉदर मी इनफ मच, क्योंकि मैं थोड़ी अथॉरिटेटिव थी, डोमिनेंट सी थी. मैं जाके उनको बोल देती थी कि डालो वापस. ऑल्दो वो नहीं डालते थे, लेकिन आई यूज्ड टू फाइट बैक. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी रिबेलियस एट दैट पॉइंट. फिर मेरा बीच में फ्रैक्चर हो गया, सो आई गॉट ऑल द लव फ्रॉम एवरीवन कि हाय तुम्हारा पाँव टूट गया. ऑल द टीचर्स कॉलिंग होम कि अब कैसी है, मेरा सर्जरी हुई थी वगैरह वगैरह. सो स्कूल वॉज वेरी सपोर्टिव. 7-8 गुड फ्रेंड्स, टॉक्सिक फ्रेंड्स एज वेल. लर्नड अ लॉट इन फ्रेंडशिप्स के दोस्तियाँ कैसे करनी चाहिए, किन किन को दोस्त बनाना है. मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था ये सब चीज़ें. grade 9 O level started. पढ़ाई में हो गई ना मैं बिल्कुल, पढ़ाई बिकॉज O levels में आके everyone just says कि पढ़ना है बस, अब कुछ नहीं करना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता. फिर I got into sports. एक javelin throw वाला आया था, I was like हाँ athletics करते हैं. So school overall gave me a lot of support. Even with YouTube, मैं grade 9 में ही थी. grade 9 का end था जब मैंने YouTube start किया with makeup. एंड एक मेरा दोस्त था सफ़ान, उसने कहा तुम्हारे फेसबुक के जो पोस्ट्स होते हैं ना बहुत फ़नी होते हैं. एंड आई यूज्ड टू लाइक पोस्ट रैंडम स्टफ ना, तो ही वाज लाइक तुम्हारे फेसबुक के पोस्ट इतने फ़नी होते हैं, तुम और स्नैपचैट पे भी तुम इतनी फ़नी होती हो, तुम क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल बनाओ. When he said that, that was the when you like seed डाल दिया, that seed was in my head and I was like कैमरा पड़ा है घर पे,
मेकअप का सामान साइड पे है, मैं इधर हूँ, क्यों ना कर लें। और आई स्टिल रिमेंबर मिड टर्म्स होने वाले थे, मैं पढ़ रही थी, मैंने वही जो किताबों का स्टैक था ना वही लिया, कैमरा उनके ऊपर रखा, वो ट्राइपॉड था मेरा, कैमरा रखा और मैं स्टार्ट हो गई। आई डोंट नो, आई जस्ट पुट म्यूजिक अराउंड लाइक बैकग्राउंड में, और मैं बस मेकअप कर रही हूँ, नथिंग, लाइक लिटरली एडिटेड, इतना गंदा एडिट किया था मैंने उसको, एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वॉच्ड इट। सही है, मुझे कोई 100 सब्सक्राइबर्स एक दिन में मिल गए थे, क्योंकि मेरा पूरा स्कूल नहीं, जितने भी लोग मुझे जानते थे उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया था। एंड एक इंस्टेंट बूस्ट वाला है, लोग मुझे देख रहे हैं, एवरीवन, सबके कमेंट्स आ रहे थे, एंड एवरीवन वाज अगेन वेरी सपोर्टिव। सो आई हैव बीन वेरी वेरी एक्सट्रीमली लकी विद गुड पीपल अराउंड मी, even though मुझे स्कूल अपना नहीं पसंद, which is because not because of the people, it was just because of the management. जिस तरीके से like it was just bad. The management was just, जो principal थी was very, इतने rules हैं unnecessary that, and you don't even know how to talk to your students, आप बहुत authoritative हो जाते हैं, and that's where it gets really annoying. एक वाक़या सुनाती हूँ, हमारे स्कूल में phones weren't allowed, but they never took them. Like अगर आप लेके घूम रहे हो आप घूमो, सही है। So no one really took phones, हमेशा सबके पास होते थे। Obviously हम थोड़ा बच के चल रहे होते थे कि टीचर ना देख लें, लेकिन स्कूल्स में everyone knew कि बच्चे फ़ोन्स आते हैं। अब एक दिन मैं कभी भी इतने ज़्यादा फ़ोन्स लेके नहीं जाती थी, बिकॉज मुझे खुद होता था अजीब सा, लेकिन उस दिन मैं लेके गई थी बिकॉज अम्मा वाज इन इस्लामाबाद, आई हैड टू गो टू चाचीज़ प्लेस, और मेरे द ओनली कॉन्टैक्ट मैंने वो फ़ोन रख लिया था कि, और मैं एप्लीकेशन भी अम्मा से लिखवा के गई थी कि फ़ोन मेरा अगर गया तो मैं कम से कम एप्लीकेशन दे सकूँ। सो व्हाट आई डिड वाज आई पास वो मेटल डिटेक्टर, तो मेरा बैग बजा। अब चेकिंग हर रोज़ होती थी, तो मैंने कहा मेरे पास तो एप्लीकेशन है, खैर है कुछ भी नहीं होता अगर बच गया। मैंने उन्हें एप्लीकेशन निकाल के दी, उन्होंने कहा नहीं है आपका हमने कॉन्फिस्केट कर लिया। अब मेरी तो हट गई, भाई क्या मतलब, अजीब एप्लीकेशन दे रही हूँ, आपको रखना है आप रख दें, मुझे वापस कर दें एंड में, बिकॉज मुझे कॉन्टैक्ट जनरली करना है। खैर उन्होंने रख लिया, उन्होंने कहा होम टाइम में चली जाएगा। अब मेरे दिमाग में था होम टाइम में आराम से चली जाके ले लूँगी। अब होम टाइम हुआ, मैं गई, द प्रिंसिपल सिटिंग देयर वाज लाइक, ओ यू नीड टू आस्क योर मॉम टू कम हियर एंड टेक इट फ्रॉम मी। मैंने कहा मेरी अम्मा तो इस्लामाबाद में, शी कैंट कम एंड आई रियली नीड टू गो टू माई चाचीज़ प्लेस बिकॉज आई एम गोना स्टे देयर, माई ब्रदर इज़ विद मी, आई नीड टू कॉन्टैक्ट हर। तो उन्होंने कहा कि ओके यूज़ द स्कूल फ़ोन। अब मैंने कहा चलो सही है, मैं गई नीचे रिसेप्शन पे, मसला क्या आया, जो चाची का नंबर ही नहीं याद, वो तो फ़ोन में नंबर। सो आई वेंट अपस्टेयर्स, आई एम लाइक मिस कैन यू जस्ट गिव मी माई फ़ोन फॉर अ सेकेंड, मुझे बस नंबर नोट डाउन करना है, यू कीप द फ़ोन, जस्ट गिव मी इट टू नोट डाउन द नंबर, लाइक आई कैन नॉट ओपन योर फ़ोन, आई एम सॉरी। वो कॉन्फिस्केट हो चुका है, जबकि इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ हर, लाइक लिटरली राइट इन फ्रंट ऑफ हर। मेरा दिल चाहता है छीन के भाग जाओ। क्या फिर शी गोज़ लाइक नो आई एम सॉरी आई कैन नॉट ओपन इट फॉर यू। मैंने कहा देन हाउ विल आई गो होम? उन्होंने कहा वेट फॉर योर चाची टू कम इनसाइड, शी विल पिक यू अप, यू आर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो ना बदतमीज़ी से बोल रही है ना, मतलब एक होता है ना एटीट्यूड आके आपको बस वो मुंह पे बोले जा रहे हैं, जबकि शी कैन हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू गो डाउन एंड लाइक टॉक टू हर विद रिसेप्शन वाला फ़ोन, इट्स नॉट लाइक आई एम रिबेलिंग बैक। लेकिन नहीं, उनको था कि वो फ़ोन खोल के नहीं देंगे मुझे। मैं फिर वेट करी, अच्छा छुट्टी 2 बजे होती है, 4 बज गए हैं एट दिस पॉइंट एंड आई एम जस्ट एग्जॉस्टेड। मेरा भाई साथ बैठा है, हम लोग, भाई मुझे जाना है घर, अजीब मैं गई वापस ऊपर, शी इज़ जस्ट ऑन लाइक पूरा वक्त टेल योर मॉम टू कम हेयर, टेल योर मॉम टू कम हेयर। अब मेरी हट गई ना मैं, और उस पॉइंट पे आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट पैनिक अटैक ऑफ माय लाइफ। मैं उनके सामने लाइक यूं खड़े होते ही बस इतना शिवर करने लगी एंड शी वाज जस्ट लाइक इसको क्या हो गया जाने से, एंड जस्ट टीयर्स, आई एम नॉट इवन लाइक क्राइंग बट मेरे आंसू आ रहे हैं ना, बस बिकॉज आई एम सो एग्जॉस्टेड एट दिस पॉइंट कि मुझे बस एक नंबर चाहिए। उन्होंने कहा तुम बैठो। अब ना मेरी सांस बहुत ज़्यादा होने लगी एंड शी जस्ट गोज़ लाइक, यहाँ पे साइड पे जूस पड़ा हुआ था, उन्होंने जूस उठाया, स्ट्रॉ निकाला, यूँ डाला, शी जस्ट गोज़ लाइक इसको पियो सही हो जाएगा सब कुछ।
नहीं मेरा फ़ोन दे तो सही हो जाएगा सब कुछ अजीब. And I didn't even drink that juice, and she was just like, अच्छा सही है, this is the last time I'm giving you this phone and you इतना सुनाया मुझे, इतना सुनाया that because of her I just had my first panic attack of my life. And I was what, like 15, 14, अजीब. खैर उसके बाद एक और सीन हुआ फ़ोन से ही रिलेटेड. अच्छा, अब मैं इस पॉइंट पे मैं व्लॉग्स करने लग गई थी, तो मैं व्लॉग्स के लिए फ़ोन लेके जाती थी. एंड इस पॉइंट पे अलाउड थे फ़ोन्स. एवरीवन यूज्ड टू बी जस्ट यूजिंग देम 24/7. अब ना मेरा ले लिया क्लास में, पता नहीं क्या, और मैंने फिर फेक एप्लीकेशन वगैरह बना के मैं गई. मैंने कहा मिल जाएगा, खैर हो गई ना. इस पॉइंट पे मैं डरती नहीं थी उनसे ना, क्योंकि बस बहुत हो गया. अब मैं गई, मैंने फ़ोन मांगा. इतनी बदतमीज़ी जो उनकी शुरू हुई ना, जो वापस से पैनिक अटैक आया. लेकिन मैं उनके सामने नहीं शो किया, मैं भाग गई थी. लाइक मैं साइड पे ही वॉशरूम था, जस्ट वेंट इन द वॉशरूम. एंड उधर उनकी प्रिंसिपल की साथ जो नहीं होती, वाइस प्रिंसिपल समथिंग, वो थी. एंड आई वाज जस्ट हैविंग अ फुल फ्लेश्ड पैनिक अटैक इन दैट वॉशरूम. एंड शी वाज लाइक, तुम्हें क्या हुआ है, तुम सही हो? मैंने कहा मेरा फ़ोन उन्होंने ले लिया है और आई हैव टू डू. मैंने कोई झूठ बोला ताकि मुझे फ़ोन मिल जाए. एंड आई ओवर रिएक्टेड सो मच कि मुझे किसी तरीके से वो फ़ोन मिल जाए. उनके सामने मैंने इतना रोई हूँ मैं, इतना रोई हूँ कि सिंपल चीज़ होती है. जस्ट अगर आपको नहीं देना फ़ोन ना, नहीं दो, बट हेल्प मी आउट विद इट. इट्स नॉट लाइक कि आप बस एडमेंट होके बैठी रहें कि नहीं तुम्हें फ़ोन तो मैं नहीं दूँगी, जबकि यू कैन क्लियरली सी आई एम स्ट्रगलिंग. सो ऐसी छोटी एग्जाम्पल्स हैं. इट मेड मी हेट बीकन हाउस. एंड एट द एंड लाइक कैंपस अच्छा है, सही है, एंड बट ग्रेड्स नहीं आते. और वो सब हम पे डाल देते हैं कि स्टूडेंट्स का मसला है, बिकॉज दूसरे स्टूडेंट्स के तो आ रहे हैं. बट लाइक इट डजेंट मैटर. उन्होंने ना डिवाइड किए हुए थे बच्चे. माई सेक्शन वॉज द डमेस्ट ऑफ देम ऑल. सो वी आर द वियर्डेस्ट टीचर्स एवर. एंड हाँ, कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियाँ होती थी ऑब्वियसली. हमारा माइंडसेट ये होता था, हमारा माइंडसेट ये कर दिया गया था कि जाके कोचिंग में पढ़ लेना. मैं ऐसी, हमें फ्री पीरियड्स मिल जाते थे कि कोचिंग में आगे पढ़ लेना. सो दैट वाज आल्सो रियली सैड कि इट वाज जस्ट अ मनी मेकिंग मशीन. कि आप इतना पैसा दो स्कूल को, वहाँ पे आपको कुछ ना पढ़ाएं और बोले कि मेरे ट्यूशन आ जाओ. फिर ट्यूशन में जाएं तो ट्यूशन में पढ़ाई होती थी, लेकिन हम इतना एग्जॉस्ट हुए भी होते थे कि नहीं होती थी. 8 घंटे स्कूल में जाओ, फिर खाना खाओ और फिर डायरेक्ट ट्यूशन जाओ. यू डिडंट हैव एनी टाइम टू योर सेल्फ. कोई ब्रेक नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, फ़ोन और ट्यूशन और बस. इट वॉजंट हेल्दी एट ऑल. लाइक ओ लेवल्स वाला टाइम, इट वॉज जस्ट लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ. खैर देन आई जॉइंड निक्सर. निक्सर में जब आई तो इट वॉज अ ह्यूज डिफरेंस. निक्सर वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. वेरी लाइक जेन्युइनली मैं सबको बोलती हूँ कि अप्लाई करो. इट्स गोना चेंज अ लॉट फॉर यू. कॉर्पोरेट, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं दैट प्रिपेयर्स यू फॉर यूनिवर्सिटी एंड फॉर योर जॉब्स इफ़ यू आर प्लानिंग टू. लाइक वी हैव फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एंटिटीज़ होती हैं हमारी डिफरेंट, और अदर कॉर्पोरेट सिस्टम होता है. सो यू एक्चुअली बिकम CEOs, CFOs, CCOs ऑफ दैट एंटिटी. एंड उसका प्रॉपर इंटरव्यू सेक्शन होता है. यू हैव टू मेक योर रेज्यूमे. इट्स अ प्रॉपर, लाइक जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलता है वैसे ही इट्स लाइक अ मिनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ निक्सर. So this is how they prepare you for things. And we have this survival thing. Regatta होता है, raft regatta. You actually build your rafts and live off like बीच पे जाके हम खुद खाना बनाते हैं. और वही खाना खाते हैं, वो मिट्टी वाला खाना होता है. बट इट्स लाइक अ सर्वाइवल थिंग. और उसमें भी लाइक पॉइंट्स होते हैं, निक्सर बक्स होते हैं उसमें. इट्स वेरी इंगेजिंग. लाइक उस यूनिवर्सिटी कह रही हूँ, सॉरी, कॉलेज में यू नो एवरीवन देयर बिकॉज इट्स सो एंगेजिंग. निक्सर में ओरिएंटेशन नाइट होती है. द फर्स्ट day you actually get together as a batch is orientation night, and orientation night is an overnight thing. So you go at 7 PM and get fired at 7 AM. Even though beach का part बहुत boring हो जाता है, बहुत sleepy हो जाते हैं सब, but still I still remember to this day I talked to like 70 people and didn't ask their name. तो अगले दिन जब मैं classes के लिए गई, I didn't know anyone's name. मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा. और आधे लोगों like
you are basically trapped in a place for 12 hours with strangers that all you do is talk. अपनी लाइफ स्टोरीज बता देते हैं सब एंड बगैर नाम बताए. So उस ओरिएंटेशन नाइट में इट्स यू जस्ट गेट टू नो एवरीवन देयर. आपके हाउसेस डिसाइड होते हैं. सो यू लाइक यूनिटी जिस तरीके से आई फील लाइक निक्सर की है, it's crazy. Like the alumni, the actual students right now, like मेरा भाई भी अभी निक्सर में ही है, so I'm still not done with it. मैंने भी उसको भेजा कि तुम जाओ यार. But it's just amazing. Everything about it is very functional. Like उधर हर चीज़ आपको सिखा देते हैं, and I ended up getting good grades, so satisfied. So I'm satisfied with that as well. And they have like a TA program. They have बहुत सारी चीज़ें that is just really really important for a student that is in college. जो I feel like most colleges in Pakistan can never provide. That does feel different. Yeah. That I've never heard of that in Pakistan at least. हाँ. Right. But so now, how is your relationship? So your mother seems like a very important part of your life. Yeah. How's your relationship with her? Very दोस्त. Like मैं उनको अम्मा कम दोस्त ज़्यादा बोलूँगी. Like I feel like मैं पहले उनसे होता था कि मैं हर चीज़ नहीं बताती थी उन्हें. But in these years, I've opened up to her about everything. Because she is very open. Like वो मुझे अगर she is going through something, she will come and talk to me about it. जब वो चीज़ होती है ना कि आगे से बंदा is sharing something, you naturally open up to them. And that's why I'm very, it's easier for me to tell her everything. मतलब कुछ भी होगा ना, बुरा अच्छा, मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कुछ बुरा किया, मैंने कोई गलती कर दी है, या मैं I'm going through something, even though I'm like, she notices everything. मैं उन्हें बताऊँ भी नहीं ना तो उन्हें पता होगा, इससे अच्छा मैं बता ही दूँ. तो my relationship with अम्मा is very like a best friend. It's not कि कोई एक barrier है. She's always like her parents were always open with her, so she took their parenting style, I guess. कि she was always open with me. हाँ कुछ चीज़ें obviously छुपानी होती होंगी, लेकिन when it comes to the major things, I know them all about her and she knows all about me. तो कहीं भी मैं मसले में फंसी होती हूँ, I know I can rely on her forever. तो it's never. और ये भी है कि मेरे घर में मेरा भाई मुझसे बहुत डरता है. अम्मा की नहीं सुनता, मेरी सुन लेगा. I don't know what that thing is. लेकिन I've taken the role of अम्मा. And now I think Abir, my brother, has like 2 ammas. Amma is the lenient one for him. I am the dominant one for him. कि नहीं तुम्हें करना है. So the family dynamics of my family is very tera mera, but it works out. Yes. So, but हाँ, the Amma has been always very authoritative in regards to her friends, her family, everywhere. उनको हर चीज़ dominant होनी है. तो she's also very empathetic, so that comes in me as well. मैं किसी को भी देखूँ, I always put myself in others' shoes. Like मैं कभी भी मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि अगर कोई, if someone's going through something, I want to be there for him, like always. That's what I've learned from her. मैंने उनको देखा है, she's always been there for people. तो वो चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है. And I always want to fix people. And I shouldn't, because that's not my job. लेकिन ये चीज़ भी मेरे अंदर उनसे आई है कि these are some like personality traits that me and her match. लेकिन सब मुझे कहते हैं कि तुम exactly like अम्मा की तरह. When it comes to personality, when it comes to face, when it comes to anything, you are the mini amma. And I just say no, you are second Momina. I'm not first Naila. Okay. So मैं उनसे ज़्यादा authoritative हूँ. लेकिन that's that, yeah. That's beautiful. And how's your relationship with yourself? Oh, Allah! Attack हो गया. दिमाग blank हो गया मेरा. What? My relationship with myself has been very, very, very hard. I am very hard on myself. I never really go easy. मुझे सब एक साथ करना है. मुझे हर चीज़ में
अपना बेस्ट देना है, मुझे परफेक्ट रहना है. एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, लेकिन it's toxic. Right. I won't say it's really nice and happy and बहुत अच्छा. It's a process and it's gonna take a while. I'm working towards it. लेकिन हाँ, it's very slow paced अभी. हल्के मैं होंगी बेहतर, क्योंकि I seek public validation and I need to stop doing that. और मैं ये रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि 1 साल पहले रियलाइज़ कर चुकी हूँ कि I need to stop that, but still I cannot, because it's such a cycle. बचपन से ही it's a cycle of कि कोई अगर मुझे अच्छा बोलेगा तभी मैं अच्छा होंगी. मैं ये कभी नहीं सोचूंगी कि मैं अच्छी हूँ. कोई अगर मुझे बताएगा तभी वो वैलिडेट करेगा उस पॉइंट को, वरना मैं अपने आप को बिल्कुल एक ढांचा समझती हूँ. और अगर कोई मुझे आके बता देता है तो मैं अच्छा फील कर लेती हूँ उसके बारे में. That's the truth. You said it's a process. When did you figure out? So process is usually has a start, and we usually don't know if it has an end. लेकिन end कभी ना कभी होता है. More or less. When did you figure out कि you're hard on yourself? Like what was that point where you were like, this is it? When I was hard on myself, I think मैंने realize जो किया था वो अभी किया 1 महीने पहले. 1 महीने पहले. Yeah, when I realized the consistency वाला part कि highs इतने ज़्यादा आ जाते हैं मेरे और lows इतने लंबा रह जाते हैं, that's when I realized. And not even in therapy, मैंने therapy में भी realize नहीं किया, because therapy was more about depression. And like वो थोड़ा से it was more into me trying to figure things out, PTSD वगैरह सब. उस सब में दूसरी exercises होती थी, तो I never really thought about me being hard on myself. I always thought of just getting better, हल्के करके. But what I wasn't really realizing कि I will never get better if I'm just too hard on myself. जिस दिन मैंने ये realize किया वो it was a month ago, and that truly did change a lot. क्योंकि now I try to be less hard on myself. मतलब मुझे पता है कि I have to do something. सही है. वो मैं आराम से स्लो पेस पे कर सकती हूँ. I don't just have to get into it and get it done foreign से. So that's where I was being too like harsh on myself, and now I try to take it very आराम से. So that's where I've changed things. इंशाल्लाह और change हो जाएंगी और वो एक process का end मिल जाएगा. लेकिन I don't think it's gonna end, because हमेशा either it's very like वो fluctuate करता रहता है. I feel like even with getting better day by day, it's always fluctuating. अच्छे दिन भी हैं, बुरे दिन भी हैं. Don't you think that's how life is? That's exactly what life is. Exactly what it is. Because you can never या तो मुझे ना होता है कि मैं एक प्लेटो हिट कर दूँ कि ना ऊपर जाऊँ ना नीचे जाऊँ. But that's very monotonous. Yeah. I don't like monotony at all. कहीं भी मुझे मैं अगर stuck हो जाती हूँ ना एक चीज़ पे, I want to change. I hate when I get bored of something. जैसे for example, I got bored of vlogging, so I started like uploading challenges वाली videos. Then I got bored of those challenges वाली videos, so I got back into vlogging. But I got bored with vlogging, so I started a podcast. You know, I keep going back, going forward, going sideways. हर जगह मैं कहीं ना कहीं टच कर रही होती हूँ, because वो monotony जिस वक्त मैं हिट करती हूँ ना उधर मेरा लो आने लगता है. So I did realize कि that's why consistency is so important. कि अगर आप consistently ऊपर जा रहे हो ना, if it's like this, it's definitely gonna be very like low, इतना far तक चलेगा आपका. But if you're consistently going up, even if you hit a plateau और वो monotony आ भी जाती है, it should go up, it shouldn't go down. Like वो consistency रहे और फिर ऊपर जाओ. It shouldn't, मतलब it can go down of course, लेकिन it shouldn't be like वो जो लंबा phase आता है ना नीचे का, वो नहीं होना चाहिए. So That's you figured it. that out. Yeah, That's I it. hope. अभी बोल तो रही हूँ लेकिन करना मुश्किल होता है. It's never easy, it's challenging. Everything is challenging in life. हाँ. Nothing's easy. Is vulnerability good?
or bad? It's good. I It's good. feel like आप बहुत सीखते हैं. Once you realize कि you are vulnerable, you learn a lot. कौन आपके साथ है, कौन नहीं है. ये एक तो aspect ही हो गया. Then दूसरा you learn about yourself. कि what is causing that, what is the reason I can work on it. ये सब चीज़ें अगर आप weak feel नहीं करोगे ना तो आप कभी strong नहीं हो सकते. If you're being strong forever, that's नहीं. You have to be vulnerable to get stronger. आप अगर अपना low hit नहीं करोगे आपको पता ही नहीं होगा कि मैं strong कैसे हूँ. That's why vulnerability is good. No, I agree with that. That's good. No, I do agree with that. And being a public figure, I think you get hit with that more. कि vulnerability वाला factor. Should I be vulnerable? Should I Yeah. not be vulnerable? I- Have you ever faced that? I never show my vulnerable days कभी भी मैं share नहीं करती. I try to be real. The day मैं अगर vulnerable हुई हूँ ना मैं सिर्फ बिलाल की death पे हुई हूँ. Because he was such a big part of like YouTube with me. Like वो vlogs में आता था. It was like my people knew him as well. So it was fair for me to be vulnerable with them. With my subscribers. तो उस point पे I showed my vulnerability because it's okay to lose people. It's okay to feel that you've lost someone. It's okay to grieve. And grievance की जो stages आते हैं ना, that's also okay because that's normal. Like if you're blaming yourself, I wouldn't say it's normal, but it's normal to feel that way. You shouldn't blame yourself, लेकिन it's normal to feel that way because एक grieving का वो एक stage होता है. You find ways to acknowledge कि ये क्या हुआ है अभी. So you might blame yourself, you might blame something else. And फिर उधर एक acceptance आपको कभी नहीं मिलती when you're grieving. बहुत मुश्किल से acceptance मिलती है कि हाँ I've lost that part of my life. That's why people are they come up to me and they say move on. नहीं. I can never move on from that, but I can move forward. I can take that part of my life, it will forever stick with me. Like he will forever stick with me. And I can move forward with it. And I don't necessarily have to let it go. I don't have to lose it. I don't have, like I've already lost enough of it. मैं वाप और क्यों lose करूँ? I want to cherish it. I want to keep it with me. And yes, it is very painful. लेकिन at the end of the day जब acceptance आप ले लेते हो ना, that's the part where you realize कि नहीं, you will never move on, but you will move forward. And you will move forward with them. So that's basically it. My analogy. That is beautiful. That is beautiful. Who is Momina? Who is Momina? Yeah, who is Momina? ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं ना ये. So people don't really, people only get to see what we show them. Sure. So who is Momina actually? What I don't show to people is the actual moment. It's not कि मैं fake करती हूँ कुछ. I am exactly the way I am in real life and on camera. I just choose to not share my vulnerable days, my private life, because that's something closer to me. And अगर मुझे लगा कि मैं share कर सकती हूँ तो for sure I will share that. लेकिन vulnerable days को मैं इसलिए नहीं show करती because it makes me feel weak. And what I don't realize is कि it's okay to feel weak. That's why maybe मैं नहीं share करती. लेकिन who is Momina का answer is genuinely I don't know right now. मतलब you never truly know who you are. You're always learning. You're always evolving. अभी फिलहाल अगर मैं एक word दे दूँ तो I'm Momina is growing. You know, I'm at a stage in मैं 20 साल की हूँ. This is the stage where you are young and बहुत अभी आगे बढ़ा है. You know, even though it feels like कि मैंने बहुत कुछ achieve कर लिया है.
और कभी कभी मुझे लगता है आई एम द मेच्योरेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. आई एम नॉट. आई हैवंट अचीव्ड अ लॉट. कंपेयर करती हूँ ना तो मुझे फील होता है कि यार लाइक कहीं ना कहीं आई डिड अचीव अ लॉट बट कहीं ना कहीं आई डिड नॉट. सो व्हेन आई वाज टेकिंग माय गैप ईयर आई फेल्ट रियली बैड कि मैं 1 साल पीछे हो गई. अब मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, सब मुझसे पहले ग्रेजुएट करेंगे, सब मुझसे 1 साल अहेड हो गए. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड अ टॉक विद मी कि व्हाई आर यू फीलिंग दिस वे, यू आर वे अहेड ऑफ अस. तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं, हमने कुछ करना स्टार्ट ही नहीं किया अभी. एंड देन इट मे वैलिडेशन मिली ना थोड़ी सी, लेकिन it did made me realize कि हाँ सही है, everyone in their life is going at their pace. It doesn't necessarily mean कि अगर मैंने 1 साल का gap year लिया है मैं पीछे हो गई हूँ. And that's exactly what didn't happen because मैं पीछे नहीं हुई. The degree I'm doing is for 3 years, so I will eventually graduate with my friends जो 4 साल की डिग्री कर रहे हैं, मैं 3 साल की कर रही हूँ. So eventually things work out. जैसे आपको करवाना है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से करवा लें बिकॉज दैट ट्रूली वर्क्स. तो दैट्स दैट कि हर चीज़ अपने पेस पे हो रही होती है. मे बी किसी को कोई 70 साल में अमीर होता है, कोई 20 साल में हो जाता है. यू हैव योर ओन पेस एंड योर ओन एवरीथिंग इज जस्ट देयर बट आपके टाइम के हिसाब से होगा. So I don't worry about anything now. That's good. Yeah. That's it. That's it. That's how we wrap up. क्या Fine. बात है. That's Who is Moana से wrap up हो गया. Yep. But how did you like it? It was good. It was good. Yes. ये self reflection ही हो रही थी अभी मेरी literally. Yeah. It was like a therapy session. Not bad. I'll take that. I'll take that as a really good compliment. Yep. Have you ever been as open as this in any of the public places that you've ever? नहीं. You've never been. How do you like it? Yes, it's nice to break the stigma. मैंने जो खुद बनाया हुआ था. Yeah. I'm glad you were able to. Yes. Fist bumps and we'll end on that. चलो. Thank you for coming, Mona. No problem. Appreciate it. After 3 years. After 3 years. Let's do a clap. 3 साल बाद भाई. Yeah. चलो. Bye. That's it. We're locked. We're wrapped up. Apologies for the inconvenience in between. कोई but, बात नहीं, होता रहता है.